ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ विकास उधर कैमरा कर जिदन सुई है ना जी जी उधर ही मैं ठंड महसूस करना भी वाह कम्मा डा पई यानी कि जिदन सुई और मच कंबी उधर घट कमी है। अच्छा उस तो अगले दिन मैं गया तो मैं 5 ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਚ ਲਾ ਛਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜੀ ਲੱਗੀ ਅਸਗਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨੇ 640 ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 5 6 10 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਨਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਲਾਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੀ ਪੱਠੇ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਟੱਪੀ ਖਾਦੇ ਮੈਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਇਆ 1.5 ਟੱਪ ਪੱਠੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਾ ਘੁੱਟ ਚਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ पानी दे रहा ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਚੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਵਾਲ ਗਿਆ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। डॉक्टर यूसुफ ने परसों टीके लाए के 3 दिन पहले 4 दिन ਕੱਲ ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਲਾਇਆ कल लास्ट टाइम जी डॉक्टर यूसुफ गुजर ने टीके लाए ने ट्रिपल ट्रिपल लगे ना ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣੀ ਮੱਝ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੀਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੀਕੇ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਟੀਕੇ ਲਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਟੀਕਾ ਹਾਫਤ ਪੰਸਾਰੀ ਹਰਬਰ ਸਪਰੇ ਕਲੋਨੀ ਚਲੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਗਾਲੀ ਚੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਬੈਨ ਕਰੋੜ ਕਿਆ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰਤ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸੂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਉਹ ਸੂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਡੰਗਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠੀ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਧੌਣ ਮੋੜੀ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੂਈ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜਕ ਪੈਂਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਹੈ ਸੀ ਆਹੋ ਸੁਸਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਈ ਨਾ ਦੋ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਦਗਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੇਸਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਵਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਲ ਖੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੰਗਰ ਦਲੀਆ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਚਲੋ ਜਬੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਵੀ ਸੂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੌਰੀ ਬਾਉ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੜ ਗਏ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਖ ਵੀ ਉੱਧਰ ਅੜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ परेशान छोटे शिष्य अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये आज बिल्कुल न्यू किस्म का केस है और ये तकरीबन कोई 7 दिन से ये बीमार है भैंस, यानी कि इसके पार्चुरेशन का जब टाइम हुआ था तो हिस्ट्री के मुताबिक यानी कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ये भैंस यानी कि सर्दी की वजह से कप कपा और सर्दी की वजह से कांपी थी और इसके साथ साथ ये भैंस चारा भी और जुगाली भी कम कर गई थी। तो इन्होंने यानी कि कम्बाइटेक 5 ग्राम और साथ यानी कि पेन किलर के तौर पर डिक्लोफेनेक के अपने ही तौर पर इन्होंने 5 इंजेक्शन वो लगा दिए और साथ एक 5 ग्राम का इंजेक्शन साइनोकोम डालकर लगा दिया। तो भैंस को काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी और इसके बाद ये भैंस को यानी कि थोड़ी ही देर के बाद इन्होंने पानी भी पिला दिया और पानी भी तकरीबन ख़ास कर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी कि मकदार में कोई 40 से 45 लीटर तक पिला दिया। और इसके बाद इन्होंने यानी कि देखा तो ये भैंस की दोबारा फिर तबीयत ख़राब होगी, हालत ख़राब होगी, तो लोग अंडे वगैरह खड़े कर गई और साथ ही ये हल्का सा सांस भी खींचने लग गई और जब बैठ जाती थी तो खड़ा होने में इसको तकलीफ महसूस होती थी। इन्होंने एक नज़दीकी डॉक्टर को बुलाकर इसको कोई यानी कि तशख़ीस करवाई, इलाज करवाया। तो उन्होंने तशख़ीस के मुताबिक इसको मिल्क फ़ीवर यानी कि मिल्क फ़ीवर की सी अलामत महसूस की। उन्होंने कैल्शियम की और नोवामिन की ड्रिपें वगैरह लगाई,
लेकिन ये कैल्शियम की ड्रिप लगाने के बाद ये भैंस बेहतर ना हो सकी, यानी कि फिर भी ये खड़ा होने में अपनी तकलीफ़ महसूस करा रही थी और चेहरा वगैरह भी और जुगाली वगैरह भी ख़ास कर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा। तो इन्होंने इधर एक नज़दीकी एक डॉक्टर है इधर हरबंसपुरा कॉलोनी में मेडिकल स्टोर में गए और हकीकत में इन्होंने बीडेक्स का इंजेक्शन लेकर आए और 50 ml का वो लगा दिया। इससे भी ये भैंस बेहतर ना हो सकी। फिर एक और डॉक्टर आया, उन्होंने कहा कि इसको कोई गर्मी होगी क्योंकि इन्होंने इलायची वगैरह सूंड वगैरह का दिया और ये तक बीडेक्स का इंजेक्शन लगाया। और इसके बाद यानी एक और डॉक्टर इन्होंने बुला लिया, यानी कि 4वां डॉक्टर था जो इन्होंने फिर दोबारा यानी कि बुलाया। तो उन्होंने आकर बोला कि इसको यानी कि जो आपने सूंड और बड़ी इलायची का जो आपने इस्तेमाल करवाया है उससे इसको गर्मी हो गई है, गर्मी की अलामत हो गई है, इसलिए इसने मुँह खोल लिया है। उन्होंने ग्लूकोज पिलाना शुरू कर दिया और ठंडे पानी वगैरह और चवरका वगैरह देना शुरू कर दिया। जबकि ये भैंस पहले ऑलरेडी मुँह खोल कर सांस ले रही थी, इसकी और हालत ख़राब होगी। तो मेरे से इन्होंने रब्ता किया। तो जब मैंने देखा अगर भैंस को तो इतनी हालत ख़राब थी कि मैंने इनको ये कहा कि ये भैंस का बचना मुश्किल है, लेकिन हम खुराक डोज लगाते हो सकता है कि अल्लाह मियाँ इसको यानी कि तंदुरुस्ती दे दे। और जबकि हमने इसको डोज लगाई तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद हमने इसको IV यानी कि ऑक्सीडेल 5 ग्राम यानी कि 1 ग्राम की जो इंजेक्शन होती है ऑक्सीडेल के 5 इंजेक्शन लेकर उनमें हमने इनको वाटर डालकर IV वाले टीके लेकर हमने इसको IV दिया और साथ हमने सलोन एम का इंजेक्शन 10 ml IV दिया और साथ हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर हमने डोज जो लगाई वो दी ड्रेटिक हमने 10 ml और फ्लूटिक हमने 10 ml दिया और साथ हमने एक्सीफर हमने 10 ml दिया और साथ एक और चीज़ हमने पेन किलर के तौर पर क्यूरजेट का भी 15 ml तक दे दिया और साथ हमने ताकत के लिए इसको कुफ्त मदाफ़त को बहाल करने के लिए हमने MEY का टीका 20 ml दे दिया और साथ हमने खाने के लिए और सलाइन इलेक्ट्री वगैरह या फिर कोई AC फाइल या कोई रेस्पिरेटरी के लिए हमने कोई चीज़ भी नहीं पिलाने के लिए कहा। इसको मुंह पकड़ कर कोई चीज़ देने के लिए हमने इसको हदायत नहीं की क्योंकि इस भैंस को ऑलरेडी सांस की तकलीफ़ थी। तो ये हो सकता था कि ये ट्रेकिया के ज़रिए हलक के ज़रिए से ये फेफड़ों में चीज़ चली है, यानी कि ड्रेंच नमूनिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा लग रहा था। तो ये हमने डोज जब लगाई तो डोज लगाने के फ़ौरन बाद ये भैंस यानी कि बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई और ये मुँह बंद कर गई थी और एक ही खुराक और फौरी तौर पर क्योंकि हमने IV टीके लगाए थे, IV डोज देने के फ़ौरन बाद ये भैंस काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी और अब चारा तो नहीं खाने लगी थी। जबकि हम उधर तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के बाद यानी कि हम वापस चले गए थे। नेक्स्ट डे हम दोबारा फिर इसकी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे इसको कितना फ़र्क पड़ा है। अब हमने देखना ये है कि इसको मसला बना क्यों, ये क्या मसला है, इसका इलाज हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या मसला बना, इसकी तकलीफ़ ये इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। असल में सबसे मेन चीज़ तो ये है, जब ये भैंस ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद इसको सर्दी का यानी कि मसला बना, यानी कि सर्दी का ठंड लगी और सर्दी की वजह से इस भैंस को यानी कि इसका टेम्परेचर डाउन हुआ। तो इन्होंने अपने ही तौर पे इन्होंने साइनोकोप का और 5 ग्राम का इंजेक्शन दिया और साथ पेन किलर लगा दिया तो भैंस को कुछ बेहतरी आ गई। उसके बाद इन्होंने कोई अच्छी मेडिसिन ना दी, कोई यानी कि 3 से 4 दिन यानी कि प्रॉपर तरीके से कोई अच्छी मेडिसिन ना लगाने की वजह से अगर मेरा तो तजुर्बा यही है कि अगर ये 5 ग्राम का इंजेक्शन ही देते रहते तो हो सकता है कि ये भैंस दोबारा रिपीट ना होती। क्योंकि इन्होंने डॉक्टरों की तरफ यानी कि रजू कर लिया, डॉक्टरों ने इनको मिल्क फीवर को यानी कि हाइपोकैल्सीमिया का इलाज शुरू कर दिया, जबकि इसको कैल्शियम की कमी नहीं थी। तो उन्होंने हाइपोकैल्सीमिया के लिए मेल्फोनसी का इस्तेमाल किया और साथ उन्होंने नोवामिन का भी इस्तेमाल कर दिया, जिससे इसको हाइपरकैल्सीमिया हो गया, जिससे ये भैंस की हालत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। क्योंकि नमूनिया का मसला था, यानी कि सर्दी लगी थी, सर्दी के बाद नमूनिया शुरू हो गया और एक फिफड़े की वजह से तो कोई यानी कि ज़्यादा इशू ना महसूस हुआ। यानी कि पहले जो अपने नथनों से सांस ले रही थी और अपनी यानी कि लॉन्ग्स की जो हवाने की ऊपर वाली जगह थी वो तो यानी कि जैसे महसूस कर रही थी जैसे यानी कि अंदर को बाहर को खींच रही है, तो सकड़ाव फैलाव का महसूस करा रही थी। लेकिन जब कि इन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई तो ये भैंस की हालत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे ये भैंस मुँह खोल कर सांस लेने लगी। जब हमने इसको देखा अगर तो हमने जब नोट किया कि इसको नमूनिया की मसला हमने तशखीस करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक डाउन था, तो हमने जब इसका इलाज किया और इलाज ठंडक नमूनिया का यानी कि हमने एंटीबायोटिक डबल एंटीबायोटिक दिया। डबल एंटीबायोटिक देने का मकसद ये होता है
कि जानवर को यानी कि आप ओवरडोज भी लगा दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक में अगर आप हल्का एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे या फिर कोई अच्छा एंटीबायोटिक नहीं लगाएंगे तो जानवर को दोबारा यानी कि रीअटैक होने का मसला होता है। हमने बैक्टीरिया साइडल की स्टेटिक की बजाय हमने बैक्टीरिया साइडल की मेडिसिन यूज़ करवाई। हम स्टेटिक में अगर यूज़ करते तो हो सकता था कि ये केस जो बिगड़ जाता। हमने बैक्टीरिया साइडल की प्रोडक्ट यूज़ की, एंटीबायोटिक यूज़ किया, जिसमें हम सेफलोस्पोरम मेडिसिन का यूज़ करवाया और साथ हमने यानी कि इसके साथ साथ हमने वो भी इनके सिफर का भी यूज़ करवा दिया और साथ हमने इनको पेन किलर और स्टीरॉयड का भी यूज़ करवा, IV भी स्टीरॉयड दे दिया और साथ हमने इनको यानी कि गर्मी के यानी कि सर्दी से बचाने के लिए इनको गर्मी में रखने का यानी कि हीट देने का और सेक देने का और टकोर करने का इन्होंने मशवरा दिया। और साथ हमने इसको मुकम्मल तौर पर बंद जगह पर रखना और साथ इतनी भी बंद जगह ना हो कि इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी कि मकसद है कि सर्दी से मुकम्मल तौर पर बचाया जाए। और इसकी जो रिब्स हैं, फेफड़ों वाली जगह है, वहाँ पे हमने इसको टकोर करने के लिए बोला और साथ गर्म टकोर करने के लिए हम रेत का इस्तेमाल करते हैं या नमक का इस्तेमाल करते हैं या वैसे ही हीट देते हैं। और साथ जब ये मुंह बंद कर जाए तो फिर हमने इसको सलाइन इलाइचरी में ऐसी फाइल से यानी कि सिरप का मिलाकर यूज़ करने का बोला। और इसके साथ हमने दोनों टाइम में ऐसी फाइल आधा सिरप यानी कि 60 ml सुबह 60 ml शाम और साथ हम यानी कि जो सलाइन इलाइचरी 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम देने का मशवरा दिया।